The question is, the patient took an inhalational medicine for asthma. Then he was told to do mouthwash rinses, otherwise he may feel hoarseness in voice and later may develop fungal infection. Alright, which inhalational drug is he or she most likely be using? तो inhalational drug जो ये use कर रहा होगा, that is budesonide. Alright, inhalational steroids using including beclomethasone, budesonide, mometasone, fluticasone, flunisolide and triamcinolone. These drugs have very little oral absorption and thus little systemic activity after inhalation. Greater than 90% of this drug reaches GIT via the oral tract. Alright, and only 4 to 5% of the drug reaches the lungs. Hoarseness of voice, it is the first sign in using these drugs. जब इन drugs को use करते तो hoarse हो जाती है voice. And oral candidiasis or oropharyngeal candidiasis is a very common side effect of these steroids, inhalational steroids. Candidiasis can be prevented by gargling with gargling after each dose. हर एक डोज के बाद गार्गल करना है, या तो नमक वाले पानी से गार्गल करो या फिर टॉपिकल निस्टैटिन की एक गार्गल आता है उससे करना होता है. ठीक है, टॉपिकल निस्टैटिन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट फॉर होर्स voice after using of these inhalational steroids. Next question is, a patient was diagnosed with a dental anaerobic infection. The antibiotic of choice will be what? Antibiotic of choice will be metronidazole. Alright, metronidazole is a drug of choice for treatment of trichomoniasis, giardiasis, bacterial vaginosis and pseudomembrane colitis that is caused by C. difficile. It is also used for treatment of infections caused by anaerobic bacteria like bacteroides, Clostridium, and in combination it is given in the therapy for H. pylori, Helicobacter pylori की जब treatment चल रही होती है तो उसमें combination में भी metronidazole is given. Next question is, creeping osseointegration is seen in which of the following implant collar? Non-machined collar implants के अंदर, non-machined collar implants के अंदर creeping osseointegration देखा जाता है. Valderrama P. et al. In 2010 observed that the radiographic changes around the non-machined collar implant was significantly less than that of the modified machined collar implants. Non-machined collar implants established bone gain was described as creeping osseointegration. इसमें creeping osseointegration थी. And this increase in the bone was not affected by loading. Next, which composite restoration benefits mostly from the KO surface beveling? Class 3 और क्लास 4 जो है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होते हैं बाय द केवो सरफेस बेवलिंग. बेवलिंग इज़ परफेक्टली यूजफुल इन क्लास 3 एंड क्लास 4 रेस्टोरेशंस फॉर बेटर एस्थेटिक बेंडिंग ऑफ कॉम्पोजिट. ठीक है, ब्लेंड इजीली कर जाता है कॉम्पोजिट एंड इंक्रीज इनेमल बॉन्डिंग विद इंक्रीज रिटेंशन. ठीक है, इन क्लास 3 एंड क्लास 4 केसेस. Next question is, asthmatic patients develop difficulty in breathing on dental chair while treatment. Drug of choice will be what? The drug of choice will be salbutamol. Salbutamol and terbutaline, these are two short-acting beta agonists. These are the drug of choice that is present with the patient and that should be present with the patient before the treatment begins, and the drug of choice in acute asthma. Next question is, patient is suffering from lung cancer और वो कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग पर है जो कि है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस इनहिबिटर. ठीक है, तो ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस इनहिबिटर इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा होगा? सो आंसर इज मेथोट्रेक्सेट. एंड अनदर ड्रग दैट इज Pemetrexed, Pemetrexed are the two drugs that are mainly used as dihydrofolate reductase inhibitors. These drugs also inhibit the thymidylate synthetase and enzymes that are involved in purine synthesis. Purine synthesis में जो भी enzymes involved होती हैं उनको ये inhibit कराता है, like glycinamide, ribonucleotide, formyl transferase, GART enzyme जो है उनको भी ये inhibit करवाता है. These drugs are thus involved in inhibiting the de novo purine synthesis. De novo purine synthesis नहीं होता, ठीक है, तो उससे सेल सिंथेसिस जो है न्यू सेल्स की इन कैंसर वो रुक जाती है या थोड़ी सी हॉल्ट हो जाती है. सो दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर.
Next question is, a female patient got her tooth extracted from you. She gave a history of suffering from peptic ulcer. Which of the following analgesics should you be prescribing to the patient? देखो, the peptic ulcer में कौन सा analgesic you will prescribe? That is etoricoxib. etoricoxib, ठीक है. ना कीटोरोलैक दोगी, ना ibuprofen दोगी, ना ही पैरासीटामोल दोगी. यू विल गो फॉर etoricoxib, ठीक है. Selective COX-2 inhibitors like etoricoxib have advantage ऑफ वेरी लिटल GI टॉक्सिसिटी. ये etoricoxib जो होते हैं वो सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स होते हैं और ये बहुत कम GI टॉक्सिसिटी करवाते हैं. हाउएवर रीनल टॉक्सिसिटी इज सिमिलर एंड द चांसेस ऑफ थ्रोम्बोसिस, एक्यूट MI एंड स्ट्रोक आर इंक्रीज ऑन प्रोलॉन्ग्ड यूज़. अगर etoricoxib को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस है दैट इज़ एक्यूट MI कुड बी ट्रिगर्ड एंड स्ट्रोक कुड बी ट्रिगर्ड, बट इट इज़ ऑन लॉन्ग यूज़. ऑलराइट. लेकिन बाकी तीनों चीज़ें कीटोरोलैक, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर दिस पेप्टिक अल्सर पेशेंट बिकॉज इसकी एसिडिटी जो इनकी एसिडिटी कॉजिंग पावर होती है दैट इज़ मच मोर दैन etoricoxib. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन एज अ पार्ट ऑफ बिसफॉस्फोनेट थेरेपी दैट इज ब्रॉन्ज, BRONG, बिसफॉस्फोनेट रिलेटेड ऑस्टियोरेडियल नेक्रोसिस ऑफ जॉ. ठीक है. सो सीरियस कॉम्प्लिकेशन बेसिकली ब्रॉन्च की जो है दैट इज ऑस्टियोरेडियल नेक्रोसिस ओनली. द सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ बिसफॉस्फोनेट्स दैट इज कीमोथेरेपी में बिसफॉस्फोनेट यूज़ होते हैं. इट इज़ ऑस्टियोरेडियल नेक्रोसिस ऑफ द जॉ. Next question is, a mandibular surgery was planned for a patient. Mandibular surgery was planned for a patient. It was required that the patient should open the mouth wide, and for that skeletal muscle relaxants were given to the patient before the surgery. Which of the following is the skeletal muscle relaxant that could be given to the patient? तो इसमें जो आंसर है दैट इज मीवाक्यूरियम. ठीक है. ना ही पैनक्यूरियम, ना ही मिथाकोलिन, ना ही ग्लाइकोपारोलेट, हम देते हैं मीवाक्यूरियम. Mevaquirium is the shortest acting non-depolarizing skeletal muscle relaxant. All right. ठीक है. skeletal muscle relaxant है ये. Short acting non-depolarizing skeletal muscle relaxant because it is metabolized by esterase enzyme in the body. इसीलिए ये short acting है. It can be used as an alternative to SCH for endotracheal intubation. SCH यहाँ पे सक्सिनाइलकोलिन है जो कि यूजुअली हम देते हैं एज अ मसल रिलैक्सेंट. इट इज़ अ डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर और ये भी शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन ऑस्टियोपोरोसिस ड्यू टू लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड थेरेपी? देखो, लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड थेरेपी में वी गिव बिसफॉस्फोनेट्स. व्हाट डू वी गिव? वी गिव बिसफॉस्फोनेट्स. Bisphosphonates are drug of choice for post-menopausal as well as steroid-induced osteoporosis. These drugs act by inhibiting the action of osteoclasts and they can result in esophageal toxicity. Bisphosphonates basically esophageal toxicity और osteoclast का action जो है उसको रोकते हैं. Which of the following is true about cleft lip? Cleft lip is more common on the left side. ज़्यादा common left side पे होता है as compared to right side. Alright. The term cleft lip in palate is commonly used to represent two types of malformation, that is cleft lip and cleft palate. ठीक है. या फिर क्लेफ्ट लिप जो होता है वो विदाउट क्लेफ्ट पैलेट भी अकर कर सकता है. क्लेफ्ट लिप इज़ अबाउट ट्वाइस एज कॉमन इन मेल्स एज इन फीमेल्स. क्लेफ्ट लिप की बात हो रही है. इट मेल प्रेडिलेक्शन इज ट्वाइस एज कॉमन एज इन फीमेल्स, वाइल द क्लेफ्ट पैलेट विदाउट क्लेफ्ट लिप इज मोर कॉमन इन फीमेल्स. क्लेफ्ट पैलेट विदाउट क्लेफ्ट लिप इज मोर कॉमन इन फीमेल्स. Oral clefts have non-random laterality, with left side clefts being more common than the right side clefts. लेफ्ट साइड के क्लेफ्ट ज़्यादा कॉमन होते हैं दैन राइट साइड क्लेफ्ट. अ पैटर्न दैट मे बी जेनेटिकली और environmentally influenced. The unilateral pattern of cleft lip is more common than bilateral pattern. Unilateral pattern cleft lip का जो होता है that is more common than bilateral pattern. The term cleft lip and palate is commonly used to represent two types of malformations. Cleft lip और palate जो term है that is used to represent two types of malformation. First is cleft lip with palate या फिर cleft lip जो है without palate होता है. ठीक है, ये याद रखना है. विद पैलेट की इटियोलॉजी अलग है और विदाउट पैलेट की इटियोलॉजी अलग है. नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल में इंक्रीज द चांसेस ऑफ डेंटल कैरीज? इंक्रीज चांसेस ऑफ डेंटल कैरीज पूछ रही है. तो फ्लोराइड जितना इंक्रीज करेगा उतना हमारे पास हमारी डेंटल कैरीज कम होगी. तो अगर फ्लोराइड की डेफिशिएंसी होती है, फ्लोराइड डेफिशिएंसी इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद heightened risk of dental caries. Fluoride is essential for preventing dental caries as it strengthens the enamel through remineralization and reduces the demineralization of enamel. While zinc
Vitamin D deficiencies also influence the dental caries. They do so by different pathways. ये हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया है. सबसे ज़्यादा फ्लोराइड अफेक्ट करेगा, फिर उसके बाद आएगी विटामिन डी की बारी, फिर आएगा जिंक. ठीक, और जिंक के बाद लास्ट में थोड़ा माइन्यूट अमाउंट्स ऑफ कॉपर कैन ऑल्सो प्ले अ रोल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव एंटी बैक्टीरियल एक्शन इन सलाइवा. देखो, सलाइवा के अंदर लाइपेजेस होती हैं जो कि सिर्फ लिपिड ब्रेक डाउन करवाती हैं. ठीक है, इसका कोई भी एंटी बैक्टीरियल एक्शन नहीं होता है. Organic factors like lysozyme, lactoferrin, myeloperoxidase, lactoperoxidase, defensins, DEFESINS, peptides, agglutinins such as glycoproteins, mucins, beta-2 macroglobulins, fibronectin 108 and antibodies have antimicrobial factors in the saliva. ठीक है, कौन कौन से फैक्टर? लाइसोजाइम, लैक्टोफेरिन, myeloperoxidase, lactoperoxidase, defensins, peptides, agglutinins such as glycoprotein, mucin. Agglutinins है सारे, glycoprotein, mucin और beta-2 macroglobulins, fibronectin 108. Next question is patient who is suffering from idiopathic thrombocytopenic purpura visits the dental for tooth extraction. What should be the minimum platelet count that is needed for proceeding the procedure? देखो, minimum platelet count should be greater than 30,000 platelets, all right, per ml of the blood. ठीक है. Based on the available ITP schedules, these platelet count should have been relatively safe, मतलब greater than 10 raised to power 9 per liter. ठीक है, इतना होना चाहिए for routine non-invasive dentistry. It should be greater than 30 into 10 raised to power 9 per liter for tooth extractions in the regional mandibular blocks and 50 into 10 raised to power 9 per liter for minor oral surgery. ठीक है, ये 10 raised to power 9 क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज इट इज़, हम लीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको. ठीक है, 50,000 होने चाहिए लगभग प्लेटलेट्स अगर माइनर ओरल सर्जरी आप करने वाले हो. तब अगर टूथ एक्सट्रैक्शन कर रहे हो तो लगभग 30,000 पर सीसी या पर ml आपके पास जो है वो प्लेटलेट्स प्रेजेंट होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू अबाउट इनले वैक्स इज व्हाट. 4 स्टेटमेंट दिए जिसमें से ट्रू स्टेटमेंट इज कार्नोवा वैक्स कंट्रीब्यूट्स ग्रेटर ग्लॉसिनेस. कार्नोवा वैक्स जो होती है वो ग्रेटर ग्लॉसिनेस प्रोवाइड करती है टू द वैक्स सरफेस देन गम डमार. ऑलराइट, देन गम डमार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट हैज़ कॉलीसिस्टाइटिस एंड पेल कलर स्टूल्स. पेल कलर स्टूल्स एक बहुत ही कॉमन चीज़ है. जब ब्लॉकेड ऑफ बाइल डक्ट हो जाती है तब वो दिखाई देता है. ठीक है, कॉलीसिस्टाइटिस इज अ कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द गॉल ब्लैडर बिकम्स इन्फ्लेम्ड ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द बाइल डक्ट. सिम्टम्स में क्या आता है? सडन शार्प पेन होती है इन द अपर राइट एब्डोमेन एंड दैट मे स्प्रेड टू द बैक और बिलो द राइट शोल्डर ब्लेड. राइट शोल्डर ब्लेड के नीचे पेन जा सकती है या फिर वो राइट एब्डोमेन में स्प्रेड कर सकती है. पेन दैट परसिस्ट एंड डज नॉट गो अवे विद इन फ्यू आवर्स इज नोन एज एक्यूट पेन. एंड दैट पेन जो कि इसके एक्यूट स्टेज के बाद भी और ज़्यादा वर्सन हो जाती है जब आप फैटी फूड खाते हो, दैट इज़ नोन एज क्रॉनिक पेन. ऑलराइट, इट कुड ऑल्सो लीड टू नॉजिया, वॉमिटिंग, फीवर, येलोनेस ऑफ द स्किन हो जाती है. पूरी स्किन जो है वो येलो कलर की होना स्टार्ट हो जाती है एंड आइज़ में जॉन्डिस दिखना शुरू हो जाता है. ठीक है, देयर इज़ लूज एंड पेल कलर बल्की स्टूल्स. देयर इज़ बेली ब्लोटिंग एसोसिएटेड विद इट. Next question is gas gangrene is caused by what? Gas gangrene is caused by the bacterial species of Clostridium. Alright, Clostridium perfringens. They release the toxins and gases that damage the cells, tissues and blood vessels causing gangrene. Clostridium perfringens is a gram-positive boxer-shaped bacilli. ठीक है, लिटमस मिल्क टेस्ट जब वो करते हैं स्ट्रॉमल सॉल्यूशन का इसका, तो देर इज़ इनोकुलेटेड लेवल्स ऑफ Clostridium perfringens दैट आर फाउंड. स्टॉर्मी क्लॉट बन जाता है, मतलब स्टॉर्मी जैसा अपीयरेंस आता है उसका. टारगेट हेमोलिसिस, डबल जोन ऑफ हेमोलिसिस इज सीन इन दिस पेशेंट्स. देयर इज गैस गैंग्रीन दैट इज सीन इन दिस पेशेंट्स. ठीक है, नागलर टेस्ट पॉजिटिव आता है. कौन सा टेस्ट? नागलर टेस्ट पॉजिटिव आता है Clostridium perfringens और Clostridium sporogenes के लिए. ठीक है, ड्यू टू एंटी अल्फा टॉक्सिन्स. इसके साथ साथ रिवर्स कैंप टेस्ट भी पॉजिटिव आता है Clostridium perfringens के लिए. Next question is actinomycosis is most commonly associated in which region? Actinomycosis in the cervicofacial region is the most common of actinomycosis. Actinomycosis is an endogenous granulomatosis disease that may occur in the following sites. First is cervicofacial region में 60 to 65% में ये occur करता है actinomycosis. It is associated with dental extractions, dental abscess, jaw trauma. It presents as slow growing, firm swelling
over the draining sinus of tracts. Slow growing, firm swelling over the draining sinus of the tracts. abdomen में उससे बात आती है 60-65% आया है आपके इसमें सर्वाइकोफेशियल रीजन में, देन abdomen में आती है 10 to 20%. Occurs after gastrointestinal perforation surgery or infections like appendicitis. All right. फिर abdomen के बाद lung में इसकी predilection होती है. Lung में there is a rare predilection and often seen secondary to aspiration present as chest pain and coughing. अगर हम एक्सपायर कर लेते हैं इसको, तभी एक्टिनोमाइकोसिस को अगर एक्सपायर कर लिया जाता है तभी रेयर कॉम्प्लिकेशन रंग में जो है वो देखी जाती है, और बेसिकली चेस्ट पेन एंड कफिंग के साथ ये शो होता है. स्किन पे सबसे कम इसका एक्टिनोमाइकोसिस का इफेक्ट होता है, लेकिन हो सकता है बहुत रेयर केसेस में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉप्लिक स्पॉट्स आर सीन वेयर. कॉप्लिक स्पॉट्स आर सीन इन वायरल इन्फेक्शन. Koplik spots are hallmark clinical features of measles. Measles का जो hallmark clinical feature है that is Koplik spot. A viral infection caused by measles morbillivirus. Measles morbillivirus. These are small white spots with a red halo. Small white spot होगा जिसके around red halo बना होगा that typically appear on the buccal mucosa, typically opposing the molars during the prodromal stage of the measles. जब प्रोड्रोमल स्टेज मीजल्स की चली हुई है. दे अपियर 1 to 2 days बिफोर द कैरेक्टरिस्टिक मीजल रैश एंड दे आर पैथोगनोमिक साइंस ऑफ द डिजीज और दैट इज़ मीजल्स. ठीक है, ये कॉप्लिक स्पॉट जो होते हैं तो ये मीजल्स के लिए पैथोगनोमिक साइन होता है. HIV रिलेटेड मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है इसमें. वाइल HIV कैन लीड टू रेंज ऑफ ओरल लीजन्स, कॉप्लिक स्पॉट्स आर नॉट अमंग देम. ठीक है, कॉप्लिक स्पॉट आपके सिर्फ मीजल्स में ही दिखाई देंगे. अगर HIV का पेशेंट है तो उसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग और लीजन दिखाई देते हैं, लेकिन कॉप्लिक स्पॉट HIV में नहीं होते हैं. हाँ, ये हो सकता है कि HIV के साथ अगर कोई वायरल इन्फेक्शन और हो रहा है तो वहाँ पे कॉप्लिक स्पॉट आ जाए, या मीजल्स का इन्फेक्शन अगर HIV के साथ हो रहा है तब वहाँ पे ये जो स्पॉट्स है वो देखे जाएँ. लेकिन HIV की वजह से देयर विल बी कभी कॉप्लिक स्पॉट नहीं आएंगे. Next question is which of the following is most common fungal infection responsible for acquired catheter-induced urinary tract or blood-borne infection? 4 ऑप्शन दिए हैं: कैंडिडा, राइनोस्पायरोडियम, हिस्टोप्लाज्मा, ट्रिकोफाइटन. तो कैंडिडा जो है वो सबसे ज़्यादा कैंडिडा एल्बिकन्स का जो बॉडी में इन्फेक्शन होता है, जब ऑपरचुनिस्टिक इन्फेक्शन कहीं पर भी बॉडी में होना होता है. तो कैंडिडा, पर्टिकुलरली द कैंडिडा एल्बिकन्स, इज़ द मोस्ट कॉमन फंगल पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैथेटर इंड्यूस्ड यूरिनरी ट्रैक एंड ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस. दीज पैथोजन्स increase the ability to form the biofilm and increasing resistance to antifungal treatments. बायोफिल्म फॉर्म कर लेते हैं ये पैथोजन जो कि कैंडिडा एल्बिकन्स वाले हैं, और एंटी फंगल ट्रीटमेंट के लिए ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं. एंड दे नीड फॉर इफेक्टिव प्रिवेंटिव एंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज इन द हॉस्पिटल सेटिंग्स, ताकि ये कंडीशन पहुँचे ही ना कभी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलेजन डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद विच वाइटामिन. विटामिन सी के साथ कोलेजन डिसऑर्डर जो है वो एसोसिएटेड होता है, हमेशा याद रखना. ये हेल्प करता है फाइब्रोब्लास्ट का कन्वर्जन टू प्रोड्यूस कोलेजन. फाइब्रोब्लास्ट से कोलेजन प्रोड्यूस कराने में हेल्प कराता है विटामिन सी. विटामिन सी इज एसेंशियल कोफैक्टर फॉर दीज एंजाइम्स दैट हाइड्रोक्सिलेट प्रोलीन एंड लाइजीन रेजिड्यूज इन द कोलेजन सिंथेसिस. मतलब प्रोलीन और लाइजीन रेजिड्यूज जो होते हैं उनकी हाइड्रोक्सिलेशन करा के कोलेजन सिंथेसिस कराने में विटामिन सी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. द हाइड्रोक्सिलेटेड अमीनो एसिड्स आर क्रूशल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कोलेजन क्रॉस लिंक्स. अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कैन लीड टू इम्पेयर्ड कोलेजन सिंथेसिस रिजल्टिंग इन स्कर्वी कैरेक्टराइज्ड बाय वीकर connective tissues, bleeding gums and poor wound healing. Next question is which major maxillary connector provides good rigidity without bulk? Good rigidity without bulk. ठीक है, that is anterior posterior strap. ये आंसर है हमारे पास. anterior posterior strap provides good rigidity without much bulk. देखो, दिस इज अ एंटीरियर पोस्टीरियर पैलेटल स्ट्रैप. लोकेशन क्या होती है इसकी? इट इज़ अ रिजिड कनेक्टर सिमिलर इन लोकेशन एंड स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ द पी बार मेजर कनेक्टर. इंडिकेटेड इन कैनेडी क्लास 1 और क्लास 2 पार्शियल डेंचर बेसिस व्हेन द लार्ज टॉरस इज प्रेजेंट. अगर बीच में बहुत बड़ा टॉरस प्रेजेंट है तब ये इंडिकेटेड होता है. एडवांटेजेस क्या है? रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्टर अलाउज द मेटल टू बी यूज्ड इन थिनर सेक्शंस, सपोर्ट अ वाइडल पैलेटल कवरेज and therefore provide good retention and stability. Next, if a patient is given NESBIT prosthesis, then he is essentially referred for what? He is essentially referred for unilateral RPD. ठीक है,
ये आंसर है हमारे पास, यूनिलेटरल आरपीडी। अ नेस्बिट पार्शियल डेंचर इज अ रिमूवेबल सिंगल टूथ रिप्लेसमेंट प्रोसेस डिजाइंड फॉर एस्थेटिक पर्पसेस ओनली। दीज रिमूवेबल डेंचर्स आर टूथ सपोर्टेड relying on the adjacent natural teeth for stability. Nesbit appliances are used in the cases where a few teeth are missing, providing a cosmetically pleasing solution. To ensure aesthetic and functional restoration, they are often used in situations where the metal frameworks are not suitable. Nesbit partial processes वहाँ यूज़ होता है जहाँ metal framework जो है वो suitable नहीं होती। Next question is, there are down regulations of inhibitory motor neurons. This causes, जो डाउन रेगुलेशन होती है इनहिबिटरी मोटर न्यूरॉन्स की, दैट कॉजेज एक्लेजिया ऑफ लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर. Achalasia, that is ACHALASIA, it is a rare esophageal motor disorder characterized by selective loss of esophageal inhibitory neuronal function, particularly at the lower esophageal sphincter. वहाँ पे उसका फंक्शन जो है वो लॉस हो जाता है. Where unopposed contractile tone leads to incomplete LES relaxation following swallowing. ठीक है, जो लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर होता है वो अनअपोजली कॉन्ट्रैक्टाइल टोन जब आती है तो वहाँ पे रिलैक्स कर जाता है. ठीक है, खुद ही खुल जाता है वो, तो उसकी मतलब वेग टोनिसिटी चेंज हो गई है वहाँ पे. एक्लेजिया उसको बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटेस्टाइनल सेल्स आर कवर्ड विद व्हाट सेल्स? इंटेस्टाइनल सेल्स आर कवर्ड विद माइक्रोविलाइज. What they are covered with? Microvilli. ना ही zymogen granules, ना ही cilia, ना ही mucoid layer. They are covered with microvilli. The mucosal cell layer in the small intestine is called as enterocytes. ठीक है. In the small intestine, they have brush border epithelium that is made up of numerous microvilli in their apical surface. Alright, this border is rich in enzymes. जो माइक्रोविलाई का बॉर्डर होता है दैट इज हाईली रिच इन एंजाइम्स. जो एंटेरोसाइट होता है उसका ऊपर का जो सरफेस है, हेड वाला सरफेस, ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट द कार्डियक आउटपुट विद द पेशेंट विद वेंट्रिकुलर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इज 70 ml. ठीक है, मतलब सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो वॉल्यूम बच रही है वो हो रही है वो 70 ml है, और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो 120 ml है. हार्ट बीट जो है वो 70 per minute चल रही है. ठीक है, द आउटपुट ऑफ द हार्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट. द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर बीट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम. तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट बीट. स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट बीट इज कार्डियक आउटपुट. ऑलराइट, नाउ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हमारे पास दी है दैट इज 120 ml, और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम दी हुई है दैट इज 70 ml. तो डायस्टोलिक माइनस सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाती है. ठीक है, मतलब जब रिलैक्सेशन वाली वॉल्यूम है दैट इज 120 ml, मतलब पूरा वेंट्रिकल भर चुका है, और जब वो पंप कर रहा है, ठीक है, सिस्टोल के बाद क्या है, सिस्टोल की जो वॉल्यूम है, सिस्टोल के बाद जो वॉल्यूम बच रही है वेंट्रिकल के अंदर वो 70 ml है. तो टोटल वॉल्यूम कितनी पंप हुई? 50 ml. वो आती है आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम. तो कार्डियक आउटपुट विल बी इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम दैट इज 50 ml मल्टीप्लाइड बाय 70 बीट्स पर मिनट दैट इज इक्वल टू 3500 ml पर मिनट. ऑलराइट, तो हमारा कार्डियक आउटपुट आता है 3500. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एटेक्सिया इन वॉकिंग वाइल विद इंटेंशनल ट्रेमर्स, dysdiadochokinesia and positive Romberg sign is seen in involvement of what? तो आंसर दिया हुआ है cerebellum. Next question is, ataxia in walking with intentional tremors, dysdiadochokinesia and positive Romberg sign is seen in involvement of what? देखो, जब cerebellum हमारा इन्वॉल्व हो जाता है तब ये वाले साइंस देखे जाते हैं. इन चीज़ों का मतलब क्या होता है? Ataxia is the loss of controlled voluntary muscle movements due to cerebellar dysfunction. Intentional tremors मतलब आप कोई नॉर्मल काम करने जाओगे, जैसे चाय का कप उठाने जाओगे तो आप रास्ते में इतना हिल रहे होगे, चाय का कप उठाने के बाद आपके हाथ इंटेंशनली बहुत ज़्यादा हिलने स्टार्ट हो जाएंगे. ये भी सेरिब्रल डिजीज़ में देखा जाता है. डिसडायडोकाइनेसिया, इसमें रैपिडली आप ऑल्टरनेटिंग इवेंट्स नहीं कर सकते, ऑल्टरनेटिंग चीज़ें नहीं कर सकते, लेफ्ट से राइट में इजीली स्विच नहीं मार सकते. नेक्स्ट इज निस्टैग्मस. निस्टैग्मस में क्या होता है कि रिदमिक ऑसिलेशन होती रहती है आइज़ की. आइज़ इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, लेफ्ट राइट जाती रहती हैं. ठीक है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस हो या वर्टिकल निस्टैग्मस हो. दिस इज एसोसिएटेड विद वर्टिब्रल एंड सेरिब्रल डिसऑर्डर्स. द साइंस ऑफ सेरिब्रल लीजन्स रिमेंबर्ड बाय द निमोनिक डैनिश. ठीक है, फर्स्ट इज डिसडायडोकाइनेसिया, सेकेंड इज एटेक्सिया, थर्ड इज निस्टैग्मस. आई से आता है इंटेंशनल ट्रेमर्स, एस से आता है स्लरिंग ऑफ द स्पीच. ठीक है, एंड एच से आता है हाइपोटोनिया ऑफ द मसल्स. खुद की वॉलेंट्री हाइपोटोनिया हो जाती है मसल्स की, लेकिन वैसे मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट शो कर रहे होते हैं. पॉजिटिव रॉम्बर्ग साइन देखा जाता है इन द पेशेंट. ठीक है, दैट इज द पेशेंट लूजेज द बैलेंस ऑफ द आइज व्हेन दे आर क्लोज्ड.
ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसीजर इट इंडिकेट्स एटेक्सिया, मतलब जब आंखें बंद करके पेशेंट जो है चलने की कोशिश करेगा तो वो अपने बैलेंस को लूज़ कर जाएगा, ठीक है। उसे वो आगे पीछे ही ढंग से नहीं चल पाएगा, ठीक है, और वो अपनी लाइन से इधर उधर भटकता रहेगा। दैट इज़ नोन एज पॉजिटिव रॉन्गबर्ग साइन। आंखें बंद करके आप वॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल्ड वे में नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ पॉजिटिव रॉन्गबर्ग साइन। Next question is, a 67-year-old female patient is admitted to the emergency department with severe swelling on right side of her neck. Right side पे severe swelling है। MRI examination revealed an abscess which surgically removed from the mandible of the posterior cervical triangle on the right side. ठीक है, एक abscess थी जो कि surgically remove कर दी गई है from the posterior cervical triangle on the right side. During recovery, the patient notices that her shoulder is dropping down and she is not able to raise her hand above her head. हाथ जो है वो सर से ऊपर नहीं उठा पा रहा है पेशेंट, और वो अपनी बालों को कंघी भी नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो कौन सी नर्व की इंजरी यहाँ पे हुई होगी? देखो, अगर हाथ नहीं उठा पा रही है, बालों की इंजरी नहीं हो पा रही है, और हमारी जो सर्जरी हुई थी दैट वाज ऑफ द पोस्टीरियर सर्वाइकल ट्रायंगल ऑफ द राइट साइड ऑफ द नेक, तो उसमें गई हमारी स्पाइनल एसेसरी नर्व। विच नर्व इज इन्वॉल्व्ड? स्पाइनल एसेसरी नर्व, स्पाइनल एसेसरी नर्व। दिस नर्व इज टेस्टेड क्लिनिकली बाय आस्किंग द पेशेंट टू श्रग हिज शोल्डर्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस। मतलब हम कंधों के ऊपर हाथ रखेंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी दोनों साइड के शोल्डर्स को ऊपर की तरफ पुल करो, ठीक है। अब हम दोनों साइड की पावर को चेक करेंगे कि शोल्डर में कितनी पावर लग पा रही है, ठीक है। नाउ बाय आस्किंग द पेशेंट टू टर्न द चिन टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड, दैट इज स्टेनोक्लिडोमास्टॉइड अगेंस्ट रेजिस्टेंस एंड अगेन कंपेयरिंग द पावर ऑन द टू साइड्स। पेशेंट है, हम सर थोड़ा सा एक फर्म फोर्स से पकड़ेंगे, फिर पेशेंट को बोलेंगे कि टर्न कर दूसरी साइड को। तो आपको फोर्स फील करनी है, ठीक है। जिस साइड को फोर्स कम लग रही है उस साइड का जो है स्टेनोक्लिडोमास्टॉइड जो है नहीं चल पा रहा है, ऑपोजिट साइड का। लीजन ऑन द स्पाइनल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व्स कॉज ड्रूपिंग ऑफ द शोल्डर्स एंड इनएबिलिटी टू टर्न द चिन टू ऑपोजिट साइड। मान लो हमारा लेफ्ट साइड का स्टेनोक्लिडोमास्टॉइड गया हुआ है और लेफ्ट साइड की स्पाइनल एक्सेसरी नर्व गई है, ठीक है। तो बंदा जो है वो राइट साइड को जो है चिन को टर्न नहीं कर पाएगा, ठीक है। राइट साइड को चिन को टर्न नहीं कर पाएगा अगर लेफ्ट साइड का ये गया हुआ है तो। Next question is, a 23-year-old boy met with an accident and now is unable to speak. It was believed that the Broca's areas of the brain वो इंजर हो चुका है। ब्रोका एरिया कहाँ सिचुएटेड होता है, इस क्वेश्चन है। ब्रोका एरिया इज सिचुएटेड इन द फ्रंटल लोब। सी द प्राइमरी एरियाज कंसर्न विद लैंग्वेज दैट आर अरेंज्ड along and near the sylvian fissure. Sylvian fissure एक डीप ग्रूव होता है जो कि हेमिस्फीयर को कैटेगोरिकली डिवाइड कर देता है, ठीक है। नाउ द रीजन इन द पोस्टीरियर एंड of superior temporal gyrus. Posterior end of superior temporal gyrus is the Wernicke's area. It is concerned with the comprehension of auditory and visual information. It projects via arcuate fasciculitis. Arcuate fasciculitis से प्रोजेक्ट करता है, ठीक है, into the Broca's area. मतलब ये Broca's area है, ये बीच में arcuate fasciculitis आ जाते हैं, ठीक है, और ये जाता है सीधा एंगुलर गायरस या फिर वर्निकेज एरियाज के पास, ठीक। नाउ ब्रोकाज एरिया जो होता है वो दैट इज एरिया नंबर 44 इन द फ्रंटल लोब, दैट इज इमीडिएटली इन फ्रंट एंड inferior end of the motor cortex. In front and in the inferior end of the motor cortex it is located. Broca's area processes the information received from the Wernicke's area into a detailed and coordinated pattern for vocalization and then projects the pattern and via speech articulation in the area. ठीक है, इन द इंसुला टू द मोटर कॉर्टेक्स, मतलब जो वर्निक्स एरिया से चीज़ें उठी हैं वो सारी ब्रोका एरिया जो है प्रोसेस कर रहा है, जो कि इंटर्न मोटर एक्शन के ज़रिए मुंह से हम बात कर पा रहे हैं. ठीक है, विच इनिशिएट्स अप्रोप्रिएट मूवमेंट्स ऑफ टंग, लिप, लैरिंक्स टू प्रोड्यूस स्पीच. ब्रोकाज एरियाज प्रोड्यूस करता है सारी मूवमेंट्स को फॉर टंग, लिप्स, लैरिंग टू प्रोड्यूस स्पीच. तो अगर स्पीच नहीं निकल रही है तो कहाँ पे इफेक्ट हुआ है? ब्रोकाज एरियाज में इफेक्ट हुआ है. और एरिया नंबर 44 में होता है ये ब्रेन के, और फ्रंटल लोब के अंदर लोकेटेड होता है. नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सीन इन फेशियल नर्व लीजन्स एक्सेप्ट. फेशियल नर्व लीजन में क्या क्या चीज़ दिखाई देगी? फर्स्ट इज फेशियल नर्व पैरालिसिस विल बी देयर, loss of salivation will be there, loss of lacrimation will be there. Fourth option that is incorrect, that is loss of taste sensation from the posterior third of the tongue. लेकिन posterior third को facial nerve supply नहीं करती है. facial nerve supply करती है anterior two third of the tongue को. ठीक है, facial nerve की जो branches हैं they are supplying the anterior two third of the tongue.
ठीक। सो पोस्टीरियर से कोई लॉस नहीं हो सकता, दैट इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर इसे सही करके बोलेंगे तो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग जो है वहाँ से हमारा जो टेस्ट सेंसेशन है उसका लॉस हो जाएगा। अलॉन्ग विद दिस देयर विल बी palsy, Bell's palsy will be there, that is paralysis of facial muscle expressions will be there. Let's go with the course of the facial nerve. Geniculate ganglion से दो चीज़ें निकलती हैं, ग्रेटर पेट्रोजल और नीचे को निकलती है फेशियल, ठीक है। इससे जो फेशियल से एक और ब्रांच होती है उसके साथ निकलती है नर्व टू स्टेपिडियस, ठीक है। उसके बाद आती है नर्व टू कॉर्डा टिम्पनाई, एंड उसके बाद ये जो मेनली फेशियल जो मेन फेशियल बनती है वो स्टाइलोमैस्टॉइड फोरामेन से निकलती है बाहर। कहाँ से? स्टाइलोमैस्टॉइड फोरामेन से फेशियल। उसके बाद ये 5 ब्रांचेस में डिवाइड कर जाती है, टेम्पोरल, साइकोमैटिक, बक्कल में 2, ठीक। उसके बाद आती है मार्जिनल मैंडिबुलर एंड देन सर्वाइकल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व पासेस थ्रू द ग्रीन मेम्ब्रेन एज शोन इन द इमेज। इमेजिन है इमेज जो आपका हाइयोइड बोन और एडम्स एप्पल के बीच का रीजन है, ठीक है। एडम्स एप्पल की जो टिप है उसके बीच का रीजन और हाइयोइड बोन का रीजन, इन दोनों के बीच के रीजन में से अगर कोई भी चीज़ हम पास करते हैं, इसमें कोई पियर्सिंग हो जाती है, कोई ट्रॉमा हो जाता है, तो कौन सी नर्व यहाँ पे इंजर हो जाएगी, दैट इज पूछ रही है। सो द आंसर इज इंटरनल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। इंटरनल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व विल बी अफेक्टेड। द स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द हाइयोइड एंड द एडम्स एप्पल, ये जो इसके बीच का जो स्ट्रक्चर होता है, फेशिया के नीचे जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज सुपीरियर लैरिंजियल वेसल्स एंड इंटरनल लैरिंजियल नर्व। ये सब इमेजिन करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सुपीरियर लैरिंजियल वेसल्स होते हैं और इंटरनल लैरिंजियल नर्व होती है। अगर इसमें कोई भी हमारे पास ट्रॉमा होता है तो इन दोनों को कोई ना कोई इंजरी होने का चांस रहता है, ठीक है। और इनके ऊपर एक थायरोहाइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। थायरोहाइड मेम्ब्रेन के नीचे ये दोनों सुपीरियर लैरिंजियल वेसल्स एंड इंटरनल लैरिंजियल नर्व विल बी प्रेजेंट। सो आवर आंसर इज इंटरनल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मेंटल फोरामेन इन एल्डरली एडेंचुलस पेशेंट। एल्डरली एडेंचुलस पेशेंट में ऊपर से रिजॉर्प्शन जो है शुरू हो गई होती है एल्वेओलर बॉर्डर की, ठीक। तो द लेवल ऑफ मेंटल फोरामेन विल बी नियरर टू द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल, नियरर टू द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल। द हाइट ऑफ द बॉडी इज markedly reduced due to the alveolar ridge resorption. The mental foramen and the mandibular canal are in close relation to alveolar border. The angle again becomes obtuse at about 140 degrees because the ramus is oblique. Next question is, a father comes to clinic. He is very demanding and less concerned about the child's demands. His behavior will be termed as what? It is authoritarian behavior. Authoritarianism, parent chooses the techniques that are for controlling the child's behavior that may be termed as non-love or non-feelings oriented. Discipline often takes the form of physical punishment or verbal ridicule. All right. The authoritarian patient or parent will insist that the child should conform to his set of norms and will expend much effort to train the child along these lines. मतलब जो वो बोलेगा वो बच्चे को करना पड़ेगा, ये authoritarian behavior होता है. The usual response of the child to authoritarian mother is submission. अगर मदर के लिए है तो मदर में he will show submission coupled with resentment and evasion of feelings from the mother. While the child will not directly disobey a command, he will be having a heightened, avoidant or gradient response and will seek to evade or delay the response. Next, a 4-year-old child visits a dental office with his parents. Parents inform that the child has been on sweetened milk before sleep since 2 years and has lost almost all the teeth due to caries. Alright, so what is this condition? That is severe early childhood caries. The American Academy of Pediatric Dentistry defines it as the presence of one or more decayed, non-cavitated or cavitated lesions missing due to caries or filled tooth surfaces in any primary tooth in a child 71 months of age or younger. ठीक है, 71 months एज या फिर उससे यंगर. इन द चाइल्ड यंगर देन 3 years of age, any sign of smooth surface caries, it is indicated of early childhood caries. सीवियर अर्ली चाइल्डहुड केरीज मतलब 3 साल से छोटा बच्चा है, उसमें अगर स्मूथ सरफेस पे किसी पे भी केरीज आ रही है तो दैट इज़ अ साइन ऑफ सीवियर अर्ली चाइल्डहुड केरीज. फ्रॉम एजेस 3 to 5, one or more cavitated missing teeth due to caries or filled smooth surfaces in the primary maxillary anterior teeth or decayed missing filled tooth greater than 4 age 3. मतलब अगर decayed filled missing tooth अगर greater than 4 है
और उम्र 3 साल तक की है, और ग्रेटर देन 5 है अगर उम्र 4 साल की है, और ग्रेटर देन 6 है अगर उम्र 5 साल की है, सरफेस के ऊपर, स्मूथ सरफेस के ऊपर, तो दैट कंस्टिट्यूट्स सिवियर अर्ली चाइल्डहुड केरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स फॉर असेसिंग द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज व्हाट। देखो, ग्रोथ ऑफ चाइल्ड कैन बी असेस्ड बाय लेटरल सेफेलोग्राम्स। एंथ्रोपोमेट्री स्टडी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क्स टू असेस द ग्रोथ, और क्रेनियोमेट्री जो होती है उसमें हम स्टडी करते हैं हार्ड टिश्यू लैंडमार्क्स की। अब सिफेलोमेट्री में क्या होता है कि हम एंथ्रोपोमेट्री भी करते हैं और क्रेनियोपोमेट्री भी करते हैं, ठीक है, सो एज टू स्टडी द सिफेलोग्राम्स। इसीलिए हमारा जो आंसर है दैट इज लेटरल सिफेलोग्राम्स, दैट इज बेस्ट असेसिंग मेथड फॉर असेसिंग द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। अमंग द ऑप्शंस गिवन दैट इज ओपीजी, सीबीसीटी, लेटरल सेप्स और स्टडी कास्ट, इनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन हमारा लेटरल सिफेलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन क्लास 2 पेशेंट mandible has to be advanced with restrictive growth of maxilla. When an appliance was given, what is the effect called as? It is known as head gear effect. ठीक है, क्लास 2 पेशेंट है, मतलब मैंडिबल पीछे को है, अब मैंडिबल हमने आगे लेके आनी है, तो हम मैक्सिला के ऊपर हेड गियर लगाते हैं, ठीक है, मैक्सिला के ऊपर फोर्स लगाई होती है और मैंडिबल को आगे पुल कर रहे होते हैं, दैट इज नोन एज द हेड गियर इफेक्ट। इन अ फंक्शनल अप्लायंस, हेड गियर प्राइमरली एक्ट्स टू रिस्ट्रिक्ट द फॉरवर्ड ग्रोथ ऑफ अपर जॉ। फॉरवर्ड ग्रोथ ऑफ अपर जॉ को हम रोक रहे हैं, देयर बाय क्रिएटिंग द स्पेस फॉर लोअर जॉ टू मूव फॉरवर्ड, ताकि हम स्पेस बना सकें फॉर द लोअर जॉ टू मूव फॉरवर्ड एंड अचीव अ बेटर अलाइनमेंट, particularly in the cases of class 2 malocclusion where the upper teeth significantly overlap the lower teeth. It helps to hold back the upper jaw while the lower jaw is positioned correctly through the functional appliance mechanism. Next question is which test is used to confirm the diagnosis of oral candidiasis? KOH mount test जो होता है that is potassium hydroxide mount test. It helps in visualizing the budding yeast and pseudo hyphae that are formed by the Candida albicans or Candida infection species. Next question is a patient visited an orthodontist with a short ramus. Ramus की height short है, downward and backward rotated mandible, extruding teeth leading to open bite. What can be the best treatment in such patients? इनमें हमें फंक्शनल अप्लायंस देना पड़ेगा प्लस बाइट ब्लॉक देना पड़ेगा, ठीक है, प्लस हेड गियर देना पड़ेगा, ठीक है। द पेशेंट इज क्लास 2 with a vertical growth pattern. This can be treated with the help of functional appliance with bite blocks to advance the mandible and further prevent the extrusion of the teeth, anterior teeth. The headgear would aid in redirecting the growth direction from the vertical towards the horizontal.